Um, Assalamu alaikum. There is no audience right time. It's session. This session will start by 10 o'clock. So I am online after a long time. I'm really happy today. Okay, we are waiting for some minutes to join some people with us. Assalamu alaikum. Hello, Miss Arifa. How are you? I'm fine, Miss. How are you, Miss? I know you are a friend of Miss Mona Jalis. Okay, let's start the session. Okay, today we are going to know about very interesting and informative topic, play and the learning environment. A child can learn in all the environment, either it is a school or a home. So it's not necessary for the teachers only that the teacher learn about the learning environment for the children, but it is important for the parents also that they can learn that how we can create a learning environment at home for the child physical and mental development. So today we are going to learn and know about these details, that what is the learning environment and how we can create in our home and as well as in school for the child's development. So this session is going to conduct by Miss Mona Jolis, who is a very well qualified and trained in ECED and the branch head of a very well reputed organization. The detailed introduction is given by Miss Mona by herself. So let's meet with her. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Walaikum salam. How How are are you, you, ma'am? Ajda? How are you? I'm fine. What about you? I'm good. I'm really fine. All right, all right. So Thank you very much, Rajda and Zainab, for inviting me and for giving me such privilege and for encouraging me in such a way. आप लोगों ने मुझे इस platform पे invite किया, for giving me such exposure. I'm really thankful to you both. no, it's honor Uh, for us that the people you are coming to Skilled and give your oh, that's share great. your valuable I'm information. humbled. So can you I'm humbled. introduce yourself? Yeah, why not? My name is Mona Jalis, and I'm working as a branch head in a school, in a renowned school. And I've done masters in literature. Along with that, I have more than 13 years experience, teaching experience, and I'm also working as an active speaker. I have done my Montessori course from Association Montessori International, that is from Netherlands, and I'm a very fun-loving person, and I love to chat, meet, interact with new people. So that's why I'm here. और पूछिए जनाब क्या सवाल है मेरे मुझसे Okay, the your topic is just like play and the learning environment. What is the Exactly. combination of play? First of all, we know we are going Hmm. to know about that. What is learning environment, and what is the Hmm. combination of play and learning environment? ऑल राइट देखिए सबसे पहली चीज जो होती है ना वो होती है कि प्ले बेसिकली है क्या इसके Hmm. बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं बहुत सारे लोग प्ले को जो है ना दे थिंक दैट दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम द वेस्ट ऑफ टाइम नो इट्स नॉट लाइक दैट क्योंकि डिफरेंट फिलोसफर्स इस बारे में बात करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रखते हैं एजुकेटर्स अपना अपने ख्याल से सोचते हैं और पेरेंट्स अपने ख्याल से सोचते हैं अगर दादा दादी को भी बात की जाए तो वो भी कहेंगे कि क्या हर वक्त खेलते रहते हो यही एक लफ्ज सुनने में आता है प्ले की True. जो है बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है इट इज द पर्सन द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ठीक है हम जैसे अपने लिए एक चीज डिफाइन करते हैं कि भाई देखिए प्ले वो है कि जब व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी स्टॉप प्लेइंग क्या बच्चों की तरह खेलते रहते हो बात ये नहीं होती कि इट इज नॉट स्पेसिफिक टू द चाइल्ड बट द थिंग इज दैट कि जो प्ले है ना इट इज the actually this it plays a significant role in a child's personality
It plays a very important role in holistic development of a child. जब हम ये बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है या किसी भी इंसान के आती है तो वो वर्ड होता है जॉय, यानी ये कि खुशी लाता है। चले भाई कम ऑन खेलते हैं तो कैसी खुशी आती है कि खेलने के नाम से खुशी आती है। We always feel joy. It brings, something excitement. It brings excitement in your personality. बच्चा खुश होकर कहता है चले ओके लेट्स प्ले। तो देखिए प्ले की जो है ना बहुत सारी मीनिंग्स है, लाइक इट कैन बी रनिंग, digging in the dirt, sliding, swimming, and a lot of the things, pretend play, building with blocks and making castles, सेंट मिस मोना, पे जाके यहाँ बच्चे पे कहते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब आपसे एक बात डिस्कस करूंगी। जैसे मोस्टली टीचर्स तो फिर भी ये बात समझते हैं कि प्ले की इम्पोर्टेंस क्या है, और हम इस तरह की प्लानिंग्स भी करते हैं जो कि प्रोडक्टिव प्ले हो। लेकिन मोस्टली पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि मतलब अगर बच्चा खेलने जा रहा है तो वो बस मतलब खेल रहा है, और वही आपने बोला ना कि वेस्ट ऑफ टाइम है। और जॉय की जब बात करते हैं तब भी उनके दिमाग में होता है कि ये सिर्फ तफरी के लिए खेल रहा है। तो इसमें लर्निंग कहाँ और जी कैसे होती है, ये बात हम पेरेंट्स को किस तरह समझाएं? बिल्कुल, देखिए इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है पेरेंटल वर्कशॉप्स। ठीक है, सबसे पहले जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं होती कि हमारे पास जो लर्निंग एरियाज हैं, दे आर द सोर्स ऑफ लर्निंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उनकी बात होती है, जिसमें सोशल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उनके पास सारी इमोशनल डेवलपमेंट है। अच्छा, आपने जो बात की है वो ये होती है कि इस सिलसिले में पेरेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड। हमने जब बच्चों के लिए बात की कि पेरेंटल वर्कशॉप, तो वो तो उस वक्त आ रही है ना कि जब वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद वो कनेक्शन पेरेंट्स के साथ बनता है। इस सिलसिले में देखिए अब इंटरनेट पे देयर आर लॉट ऑफ द ट्यूटोरियल्स, थिंग्स नीड टू दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चीज समझनी है। कि अब हमारा बच्चा बाहर खेलने जा रहा है तो हमको भी तो ये समझना है कि वो बच्चा किस तरह की गेम खेल रहा है या अब सबको अवेयरनेस है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। और जब वो एग्जैक्टली। आप खुद सोचिए कि जब माएँ अपने बच्चों के साथ अलग-अलग बैठ के ड्रामास देख सकती हैं, वो दुनिया की चीजें कर सकती हैं, तो दे कैन विजिट मैनी पेजेस। हम सब लोग इतने ऑनलाइन एक्टिव हैं, उनके अपने स्कूल के पेजेस ऐसे हैं जिसमें उनको आइडियाज दिए जाते हैं, एक्टिविटीज दी जाती हैं, उसमें पिक्चर्स होती हैं, so they may understand, they may learn a lot of the things from those websites as well। ठीक है ना? तो जो पेरेंटल गाइडेंस की होती हैं, तो अगर बच्चा बाहर खेलने जाता है तो आप उनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ वैरायटी है ऐसी जिसमें आप लो बजट पे जाके बच्चों के लिए बहुत कुछ बना सकते हैं। उनके कार्टन से, जैसे कार्टन आपके घर में आता है, माएँ अगर चाहें तो अपने बच्चों के लिए लर्निंग एरियाज खुद बना सकती हैं, अगर वो इंडोर है तो। और अगर वो आउटडोर है तो बच्चों को मॉनिटरिंग करके बाहर भी उनको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की जा सकती है, रनिंग करवाई जाए। ट्राई साइकिल्स है तो ट्राई साइकिल्स दी जाएं, बाईसाइकिल्स दी जाएं, हुला हूप्स दे दें। जंपिंग कासल तो खैर पॉसिबल नहीं होता, वो तो किसी इवेंट में ही होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दादा दादी या बच्चे माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ आउटडोर एक्सपोजर मिलेगा उन्हें। उनको किसी भी जगह लेके जाइए, ज़ू लेके जाइए, आप इस तरह की बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जो प्ले में ही लर्न विद फन हो रहा है, फन विद लर्न हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगी कि जब बच्चा माँ से निकल सही के है। सबसे पहली और चीज़ इसमें लर्निंग फिजिकल और एनवायरनमेंट। कॉग्निटिव दोनों डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल, हर किस्म की चीज़ें आ रही हैं ना। अब आप ये खुद मुझे बताएँ कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो घर से स्टार्ट हो गया है। माँ ने एक ऐसा रूम या अपनी ही थोड़ी-सी चीज़ों में ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है कि जहाँ बच्चा बैठ के बुक्स पढ़ सकता है, जहाँ पर वो अपने बैठ के थोड़े से टॉयज़, ऑब्जेक्ट बॉक्स रख के ही कैन इवन शो एंड टेल एक्टिविटी होती है ना, बच्चों के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, व्हाट इज़ दिस? अच्छा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? तो इस तरह से बच्चे की लिंग्विस्टिक्स, लिटरेसी डेवलपमेंट हो रही होती है। ही इज़ गोइंग टू टॉक, द पेरेंट इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉय, अबाउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है? फिर आप अगर बुक्स रख लीजिए थोड़ी-सी, आप पिक्चर बुक्स रख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है राजदा कि हमारे बच्चों के ना पेरेंट्स को एज लेवल और एज एप्रोप्रिएट चीज़ों की पता ही नहीं होता। कि इस उम्र का बच्चा कौन सी बुक्स पढ़े, किस उम्र का बच्चा कौन से टॉयज से खेले। और वो उनके लिए सिर्फ एक मजीद एक चीज होती है, जिसे वो समझते हैं कि ये दे दिया जाए तो भाई हम
वी आर फ्री। और वो क्या चीज होती है आप बताइए? मोबाइल होता है। बस मोबाइल दे दिया सही और बात है, उसके वो बाद बहुत उनकी आसान तरीका है। बहुत आसान है। और सो दिस हमारे इज यहाँ सो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जब जी। बाहर जाते हैं, स्पेशली टॉय शॉप्स में या बुक्स खरीदने भी, तो मोस्टली हम्म। लोगों का ये एक एटीट्यूड है कि वो हमेशा पहले हम्म। ये देखते हैं कि इस बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है, कि ये एज मतलब इसकी किस एज से शुरू होके किस एज पे ये जो है जी। वो मतलब ये जो गेम है या टॉय है वो बच्चा खेल सकता है। यानी पेरेंट्स, बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स ये खुद डिसाइड भी नहीं कर सकते कि ये चीज मेरा बच्चा जो है वो खेल हम्म। सकता है या नहीं खेल बिल्कुल। सकता। तो बिल्कुल हमारे खेल पेरेंट्स सकते हैं। के लिए थोड़ा सा ये वाकई में मुश्किल है कि वो एज अप्रोप्रिएट चीजें सेलेक्ट किस तरह करें और कैसे करें। और आप जो लर्निंग बिल्कुल। एरियाज की बात कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा हम्म। इसका भी डिटेल बताएं कि किस एज जी। के लिए कौन सा लर्निंग एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल। देखिए, जब आप यंग मॉम्स होती हैं, जब वो बच्चों को अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने बैठती हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ बुक्स शुड बी प्रोवाइडेड, व्हाट काइंड ऑफ टॉयज़ दे मस्ट हैव। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है, तो आपके घर में दूसरे बच्चे भी होते हैं और वो अपने टॉयज़ से खेल रहे होते हैं, आप बच्चे अपने होते हैं, ठीक है? उसमें आप ये सोचिए कि वो वाले सॉफ्ट टॉयज़ हों, जो बच्चा हाथ में ले तो उसकी सेंसरी डेवलपमेंट हो रही हो, बाय टचिंग, बाय मैनिपुलेटिंग इन द हैंड्स। वो बच्चे ने सेंसरी डेवलपमेंट हो रही है, सॉफ्ट हार्ड टॉय, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो गई है। आपने वो बॉक्स बना दिया है, कॉर्नर में उसका टॉय बास्केट बन गई है। फिर आपने छोटी सी बुक्स रख दी, बोर्ड बुक्स रख दी। नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पिक्चर्स। ओके, विच पिक्चर यू मे सी? ओके, पिक्चर देखी बच्चे ने, फिर आपने यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पिक्चर बाय रीड अलाउड किया, ठीक है? तो उसकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो गई एंड देन लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई। फिर आपने सेंसरी डेवलपमेंट कैसे की? आप अपने साथ ही बच्चे को लगा के रखे कि भाई फोल्डिंग नैपकिंस, वो भी तो होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रही है। वेरी चीजों गुड। को यस। समेट के बॉक्स में रखते जाएं, एक और बॉक्स रखिए। ग्रॉस मोटर में आप रनिंग कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, माँ ने उसको चीजें सिखाई, नाउ यू हैव टू कीप देम बैक। तो ये लैंग्वेज भी हुई और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में बच्चे से टेबल साफ करवाइए, छोटा सा बच्चा है, वो अपनी चीजों को दोबारा से रखना सीखे, वाइंड अप करना सीखे। तो वो सारी चीजें माँ ने स्टार्ट कर दी उस एनवायरमेंट में। एंड देन ही इज गोइंग टू लर्न सम एथिक्स, सम एटिकेट्स, टेबल मैनर्स हैं, पेरेंट्स के साथ बात करना है, एल्डर्स के साथ बात करना है। सो द इन्वायरमेंट हैज स्टार्टेड नाउ, द थिंग हैज बीन स्टार्टेड, जो उसकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट में आ गई है ना? सही बात अगर है। अब आप लर्निंग एनवायरमेंट की बात करते हैं, नाउ कम टू स्कूल। एक टीचर को इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो साइकोलॉजी को समझे, जो माँ नहीं समझ पाती है, जो घर में पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, या वो लोग नहीं समझ पाते हैं जो दादा दादी हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा आता है हमारे पास, तो वो रेडीमेड चिल्ड्रन होते हैं 2.5 ईयर्स के, ठीक है? वो बच्चे अब आके सेटल हो रहे हैं एंड नाउ हियर इज द हाई टाइम टू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजी। बच्चे को वेलकम करती है टीचर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। कैसे? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। अर्ली ईयर्स की टीचर्स के पास सबसे बड़ी चीज जो होती है, वो क्या चीज होती है कि वो ये सोचते हैं कि हमारे पास हर चीज मैंने बिल्कुल वेल डिजाइंड हो। जैसे अगर आपके पास एरियाज हैं, तो वो एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं? प्री एंड प्ले एरिया होता है, जो एक्सटेंडेड होम होता है, एक एरिया होता है। उसमें आप छोटा सा आयरनिंग टेबल, बेडरूम सेट, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग एरिया बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो सारी चीजें घर की याद दिलाती नहीं है। कहते हैं छोटा सा एक जगह हो गई, एंड नाउ दिस इज द प्री एंड प्ले एरिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये चीज आती है कि लिटरेसी कॉर्नर आ जाता है, उसके बाद आता है न्यूमरेसी कॉर्नर, देन म्यूजिक एरिया, देन रीडिंग एरिया। उसके बाद आपका आता है कि जितने भी आपने ये सारे एरियाज बनाए हुए हैं, और वो सारे एरियाज बच्चे को सिखा रहे होते हैं, ठीक है जी? इस तरह की सबसे चीजें। ज्यादा सबसे ज्यादा मुझे हम्म। लगता है कि सिखाने से ज्यादा इसमें रोल ये, मतलब मुझे लगता है कि बच्चे सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। जहाँ आपने बिल्कुल कहा ना होता कि खुद की क्लीनिंग, खुद का वाइंड अप, खुद की चीजें उठाना रखना, हर चीज, तो है। जी, इंडिपेंडेंसी ज्यादा आती है। और बिल्कुल ये बहुत आती है। फिजिकल डेवलपमेंट है। अच्छा, जी, हमारे वेरी पास जो ट्रू। टीचर होती है उसको अर्ली इयर्स का ट्रेंड होना जरूरी है। शी शुड बी ट्रेन्ड इनफ, ठीक है? चाहे वो मॉन्टेसरी ट्रेंड हो, वेदर शी इज ईसी ट्रेन टीचर, शी मस्ट बी ट्रेन, शी मस्ट नो अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है? उसको ये पता होना चाहिए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बेसिकली है क्या।
अगर मैंने कोई डिजाइन की है एक्टिविटीज, तो उनका लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, उसका बच्चे की पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी एक्टिविटीज इंडिविजुअली करेगा, कौन सी वो कलेक्टिवली करेगा। और देखिए ये जितने भी एरियाज हैं ना डेवलपमेंट के, चाहे वो उसके सोशल हों, चाहे वो उसके लिटरेसी डेवलपमेंट हो रही हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव है, या उसकी सोशल इमोशनल जो भी हो रही हो, टीचर मस्ट नो इट। सारा का सारा जो एक बात है ना वो इंटरलिंक्ड है। देखिए एक और चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तो सेफ एनवायरनमेंट हो, वेदर इट इज इंडोर और वेदर इट इज आउटडोर। अगर आपने लाइब्रेरी बनाई है कॉर्नर में छोटी सी, या रीडिंग एरिया बनाया है, या राइटिंग एरिया बनाया है, इट शुड बी अवे और ऑपोजिट टू म्यूजिकल एरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि प्रीटेंड प्ले एरिया के साथ ही बच्चे, क्योंकि वहां बातें करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, रोल मॉडल बने हुए होते हैं, कोई किसी की हेल्प कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो बात कर रहे होते हैं ना, तो इट मे बी डिसरप्टिव फॉर द राइटिंग एरिया। तो थोड़ा सा, या फिर म्यूजिक में तो बच्चे ऑफ कोर्स सिंगिंग कर रहे होंगे, राइमिंग्स हो रही होगी, बातें हो रही होगी, म्यूजिक चल रहा होगा, तो वो इट मस्ट बी सो नॉइजी। तो उस चीज से, उस डिस्ट्रप्शन से महफूज करने के लिए टीचर को ऐसा डिजाइन करना चाहिए, उसे लेआउट बनाना चाहिए पहले, फिर उन एक्टिविटीज को इनकलकेट करना चाहिए ताकि आप एक एक एरिया पे बच्चा फोकस कर सके। Poorly designed classrooms are always disruptive, are always have very worst impact on everyone. कोई भी हमारा स्पेसिफिक एरिया होता है, मैंने लॉन्ग पीरियड मैंने बच्चों के साथ काम किया है, टीचर्स को ऑब्जर्व किया है एज अ हेड, मैं जानती हूँ कि आप भी जानते होंगे, आप भी माशाल्लाह से इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बच्चा, हर हर बच्चे की नीड, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल चाइल्ड, तो हर बच्चे की नीड कुछ और है। कुछ बच्चे डिस्ट्रप्शन को पसंद नहीं करते, कि जब वो पढ़ रहे हो तो वो मुझे बहुत शोर हो रहा है, तो वो नहीं सीखते। इसी तरह से कुछ बच्चे वॉशिंग एरिया की तरफ जरूर जाएंगे, तो वॉशिंग एरिया हो या जो भी वॉशिंग एक्टिविटीज आपने रखी हैं, इट शुड बी नियर टू द वॉशरूम। या आउटडोर में आपने सैंड एंड वाटर एरिया करा है, अब उन्हें नेचुरली हाथ तो धोने हैं, तो वो भी इट शुड बी नियर टू द वॉशरूम एज वेल। तो ये सारी चीजें टीचर के अपने माइंड में होनी चाहिए, लाइट्स का, फायर सेफ्टी का, तमाम एयरिंग कितनी है, क्लास कितनी स्पेस है, वो सब चीजों का माइंड में रखते हुए ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन नजर आया था, उसमें लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, somebody is asking कि हाउ प्ले इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। हम इसी चीज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास लेट सपोज आर्ट एंड क्राफ्ट एरिया आ गया, अब लर्निंग कहाँ हो रही है इस प्ले में, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं फॉर एग्जांपल उठाती हूँ, तो देखिए लर्निंग बहुत जबरदस्त हो रही है। कैसे? आपके पास बच्चा आया, अब हम सब टीचर्स, हम सब एजुकेटर्स जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी को, उसमें 8 9 उसमें टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो वो कौन सी इंटेलिजेंस है जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो गई है, ठीक है। एक कौन सी एक्टिविटी है जो कि मैथमेटिकल माइंड को डेवलप कर रही है, वो कौन सी एक्टिविटी है या एरिया है जो इंटरपर्सनल को कर रहा है, वो कौन सी एक्टिविटी और एरियाज हैं जो इंट्रापर्सनल एक्टिविटीज, इंटेलिजेंस को उसकी इनहेंस कर रहा है, लिटरेसी को, लिंग्विस्टिक्स को कर रहा है। तो मतलब आर्ट टाइप की आपकी एक्टिव जो इंटेलिजेंस है वो आर्ट एक्टिविटीज में आ गई, इंटरपर्सनल में आ गई आपकी। यू आर सो क्रिएटिव, है ना। और इसी तरह से अगर आप इंटरलिंक करें, अगर आप स्किल्स की बात करें, तो आपके पास तो आर्ट एंड क्राफ्ट में कलरिंग कर रहे हैं, पहले सबसे पहली चीज स्क्रिबलिंग कर रहा है बच्चा, खेल कूद में उसने अनस्ट्रक्चर्ड प्ले खेला, टाइप्स है ना प्ले की, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले खेला, पेपर एंड वैरायटी ऑफ द कलर्स, पेन्स, एवरीथिंग इज देयर उसमें। और टीचर को पता है कि ये इस एज का बच्चा है 2.5 का, तो सबसे पहले तो वो स्क्रिबलिंग ही करेगा स्टार्ट, उससे भी पहले वाले बच्चे शुरू कर जाते हैं, पेंटिंग शुरू कर जाते हैं, हैंड प्रिंटिंग आती है इसके अंदर, आपकी थंब प्रिंटिंग हो जाती है, और हम कितनी चीजें बनाते हैं। तो इन दिस वे द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ कलर कॉम्बिनेशन स्किल्स, कि कौन सा कलर मैंने बनाया तो वो क्या होगा, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कलर्स आ जाते हैं। तो बच्चे ने स्क्रिबलिंग सीखी, फाइन मोटर डेवलपमेंट उसकी हो गई, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गई, राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई स्टार्ट, और उसके साथ साथ ही इज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू मिक्स द कलर्स। तो इसमें फिगरिंग आउट हुई, थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो गई, इंडिपेंडेंट हो गया बच्चा। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ जा रही हैं, लर्निंग की तरफ जा रही हैं।
है ना? अच्छा, मैं मिस मोना, इसमें एक बात मैं ऐड करूँगी कि जैसे जी। टीचर्स का एक नेचर होता है कि ऑल द टाइम इंस्ट्रक्शंस देना बच्चों को। हुँ, तो मैं खाली इसमें क्या ऐड करना चाहूँगी कि टीचर्स को इस टाइम में स्पेशली ऐसा मेरे ख़्याल से नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ये फ्री प्ले है या बच्चा जो है वो खुद से सीख रहा है, खुद की चॉइस है, तो आई थिंक हुँ, उसे जैसे आप कह रहे हो ना कि आर्ट एंड क्राफ्ट में या म्यूज़िक रूम हुँ, में वो हुँ। एन्जॉय भी कर रहा है, सिंगिंग भी कर रहा है। तो बाज़ दफ़ा जी, टीचर्स का ऐसा नेचर होता है कि उस वक़्त भी उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, ये करो, ये ऐसे मत करो, डू दिस, डू नॉट दिस। तो आई थिंक जी। इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। व्हाट यू से अबाउट दिस? देखिए, एक बहुत ये भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन एजुकेटर्स, बिटवीन फिलोसफर्स, टीचर्स, हेड्स, सब में होता है कि जिसमें कहा जाता है कि वेदर द क्लास शुड बी टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है? हुँ। एंड आई थिंक सो ये एक बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब इसका मामला। डिसिप्लिन अपनी हाँ, इट शुड डिसिप्लिन होना बी, ज़रूरी है। फ्रीडम विद इन लिमिटेशंस, जरूर आपने सुना होगा। फ्रीडम विद इन लिमिटेशंस का मतलब ये है कि आप उनको इंटरफेयर नहीं कर रहे। व्हेन इट इज हुँ। नीडेड यू आर गोइंग टू इंटरवीन, ठीक है? आप उनको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको ये लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की सिजर से अगर बाल काट दिए हैं, तो तब तो आप जरूर हाँ, इंटरप्ट करेंगे डिसिप्लिन ना, तब तो आप, डिसिप्लिन जी। इम्पोर्टेंट है। येस। लेकिन आप स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्ले भी आ गया इसमें। देखिए कैसे जी। आया कि आपने स्ट्रक्चर्ड प्ले को एक तरफ रखा, पहले आपने अनस्ट्रक्चर्ड में यू आर प्रोवाइडिंग देम अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स। आई मीन, जैसे आपने एक बास्केट में कलर्स रख दिए, स्क्रिबलिंग के लिए चीजें रख दी, फिर आपने मार्कर्स रखे, आपने राउंड टिप सिजर्स रख दिए हैं। तो द चाइल्ड इज सिटिंग देयर एंड ही इज थिंकिंग कि व्हाट शुड आई डू, ठीक है? वो खुद अपनी इंडिपेंडेंसी से सोच रहा है कि आज मुझे ये कलर करना है, मुझे स्क्रिबलिंग करनी है, फिर मुझे कटिंग करनी है, या ट्रेसिंग पैटर्न्स हैं अगर वहां रखे हुए, तो मुझे उसमें से क्या चीज करनी है। लेकिन अगर आपको ये लगता है यहाँ पर मैं आके थोड़ी सी मॉनिटरिंग करके बच्चे को एक डायरेक्शन दे दूं, तो दैट इज गुड, है ना? हुँ। लेकिन एक चीज होती है अनस्ट्रक्चर्ड और एक होती है स्ट्रक्चर्ड। अब उस स्ट्रक्चर्ड की बात में मैं आपको बताती हूँ कहाँ होनी चाहिए। जहां पर आपको लगता है कि आपने प्लानिंग के अंदर बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट से किसी नंबर को, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रियल ऑब्जेक्ट से किसी बच्चे को, आपने बच्चों को पढ़ाना है, यू आर गोइंग टू मेक अ सर्कल, यू आर गोइंग टू शो द ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए, या साउंड्स की बात कर ले, तो वो सब एक डिसिप्लिन मैनर में दे आर सिटिंग इन अ सर्कल। उसी गेम में ही तो खेल रहे हैं, सब खेल में ही सीख रहे हैं ना, दे आर लर्निंग समथिंग। फिर येस। आपने बच्चों को जो दिया सैंड पेपर लेटर, एक ग्रुप आपने बनाया, बच्चों को बताया, यू आर गिविंग देम द कंसेप्ट ऑफ द नंबर और द साउंड और द लेटर, एंड देन वही ग्रुप जाकर सैंड पेपर लेटर पे लिख रहा है कुछ, या सैंड पेपर नंबर पे लिख रहे हैं। उस ग्रुप को आपने दिया, नाउ यू आर नॉट लुकिंग एट देम। जरूरी नहीं है हर क्लास में हमारे पास असिस्टेंट्स हों। आपने उन ग्रुप को कहा, वो बच्चे वहां जाके बैठे, तो डिसिप्लिन मैनर में दे आर लर्निंग ओवर देयर एंड यू आर कीपिंग एन आई ऑन देम। फिर थर्ड ग्रुप आता है, थर्ड ग्रुप ने लिखना शुरू करा, वेदर दे आर राइटिंग ऑन द बोर्ड्स, वेदर दे आर राइटिंग इन द कॉपीज। ये तीन ग्रुप हो गए आपके पास। तो इसी तरह से आपने, यू आर कीपिंग एन आई ऑन देम, यू आर टीचिंग देम, सब कुछ उन्हें कॉन्सेप्ट दिया, एंड देन दे आर फ्री टू डू समथिंग ऑन देयर ओन बेसिस। ओके। ये है एक मिस चीज मोना, होती है। हम हाउ मेनी लर्निंग एरियाज़ वी कैन डेवलप इन वन प्लेस? एक रूम में हम कितने लर्निंग एरियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, अगर एक नॉर्मल हम देखा जाए तो क्लासरूम्स हमारी जो होती हैं, उन क्लासरूम्स में हमारे पास मसला होता है स्पेस का, जिसमें हुँ, आप समझते हैं कि हमारे पास बच्चे 25 टू 30 होते हैं नॉर्मली, होते हैं। ठीक है? बहुत से स्कूल्स में ये फैसिलिटी अगर ना हो जैसे, तो टीचर कैन बी सो क्रिएटिव इन दिस रिगार्ड। वो थोड़ी सी एक्टिविटीज को रखते हुए अपने पास लर्निंग एरियाज आगे पीछे कर सकते हैं। किस तरह करेंगे कि अगर उनके पास थोड़ा सा हिस्सा अंदर का है और थोड़ा बाहर है, आउटडोर है, सो दे कैन डिजाइन देयर क्लासेस इन दैट वे कि एक आपने टेबल रखी है एंड देन द चाइल्ड 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग ओवर देयर, एंड देन
वो नीचे भी बैठ सकते हैं सर्कल टाइम में, ठीक है। तो दो चीजें ये हो गई। साइड में आपने शेल्फ्स रखे, आपने शेल्फ के ऊपर ही चीजें लगा दी लिटरेसी की, नीचे आपने थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल रख लिया। तो इन दैट वे यू कैन मैनेज द बोथ थिंग्स, आई मीन जो आपकी रीडिंग हो गई, आपका ऊपर लिटरेसी की सारी एक्टिविटीज हो गई, एंड देन सेंसरी इन वन शेल्फ। इस तरह से करके आप अपनी छोटी सी भी क्लास को मैनेज कर सकते हैं। फिर आपके पास एक और चीज होती है कि चाइल्ड साइज चीजें होनी चाहिए, तो आपके पास एक डोर भी होता है। मैंने अक्सर ये जी। देखा है कि वो जो छोटा सा जो क्लास डोर होता है, उसमें आप लेमिनेटेड, आई मीन कोई प्लास्टिक लगा के चार्ट बोर्ड, चार्ट पेपर से बच्चों के लिए वो जगह भी यूटिलाइज कर यूज कर। सकते हैं। तो एक शॉर्ट में, यानी कि लो बजट में भी हर टीचर, इफ शी इज विलिंग टू डू दिस, शी कैन डू एवरीथिंग, शी इज द क्वीन ऑफ दैट क्लास, है ना। और फिर उसके साथ साथ आपके पास जब एरियाज होते हैं, जिसमें हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट एरिया है, ब्लॉक एरियाज है, एंड देन यू हैव लिटरेसी सेंटर, यू हैव सेंसरी सेंटर। वो जो सेंसरी हो गया तो साइंस हो गया, आपके पास लाइब्रेरी, लिटरेसी, रीडिंग कॉर्नर उसी एक जगह को बना दीजिए। म्यूजिक में आप थोड़ा सा सर्कल टाइम में म्यूजिक कर लीजिए। तो इस तरह से आप सारी चीजों को कवर करेंगे। और अगर आपके ओके। पास माशाल्लाह लकीली बड़ी क्लास है, तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ एरियाज एज वेल। बस आपका क्या जी एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, कि मतलब किस तरह आप चिल्ड्रन का जो फ्लो होता है या उसको किस तरह मैनेज करते हैं, कि बच्चे किस तरह से डिफरेंट कॉर्नर्स पे स्कैटर्ड होते हैं, या आप किस तरह डिवीजन करते हो बच्चों का, तो वो आप थोड़ा शेयर करेंगे अपना। जी जी, मैंने जैसे आपको बताया ना कि देखिए, अगर आपके पास 20 to 25 स्टूडेंट्स हैं, यू कैन मेक ग्रुप्स, ठीक है। अब अगर आपके पास वो है असिस्टेंट है, तो यू कैन इवन आस्क हर, क्योंकि वो भी आपके साथ रह के ट्रेंड हो जाती है इतनी। तो आप एक्टिविटीज ऐसी डिजाइन कीजिए कि जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास बच्चा आ रहा है और आपने उस दिन उसको क से रिलेटेड कुछ पढ़ाया, या अगर आपके पास सीवीसी वर्ड्स की कोई एक्टिविटी है, या 1 या 2 अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। आप 3 एक्टिविटीज उस दिन डिजाइन कीजिए। एक ग्रुप आपका पूरा बाहर जा सकता है, 7 to 8 बच्चों का। हंटिंग गेम्स हो सकते हैं, उसी साउंड से रिलेटेड बच्चों को बाहर लेके टीचर बैठ सकती है। शी कैन सिट आउटसाइड, शी कैन इवन टॉक अबाउट द थिंग्स which is going to be started with letter k, which is going to be relatable with the लर्निंग स्ट्रेटेजी। वो जो जो भी साउंड या जो भी चीज पढ़ाने वो कंसेप्ट को जा रही है, शी कैन इवन टेक द बुक्स एज वेल, और बच्चे बाहर रीड अलाउड भी कर सकते हैं। एक आपका टेबल पे बैठ गए, 10 हो गए, अगर आपके 8 to 9 हो गए एक ग्रुप आपका, एंड द अदर ग्रुप इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। तो इस तरह से दो ग्रुप्स को आप देखिए, एक ग्रुप को आप बाहर भेज दीजिए, ठीक है। इवन वन थिंग यू कैन डू एज वेल, वो जो टीचर होती है उसका काम ये होता है कि वो अपने पास बहुत फास्ट लर्नर्स नहीं रखे। जो बच्चे ऑलरेडी माशाल्लाह से, जिनकी एक अच्छी पहले से लर्निंग एबिलिटी है, डेवलप हो चुकी है, कैपेबिलिटी है उनमें कि दे आर फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर नहीं है, उनको ले जाके बाहर अपनी असिस्टेंट्स को दीजिए और दो ग्रुप्स को खुद संभालें। सो एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू कीप एन आई ऑन देम। एक राइटिंग वाला ग्रुप हो गया, जो स्लो लर्नर्स है उनको अपने पास बिठाइए, मेक देम सिट विद यू, एंड द अदर ग्रुप इज गोइंग टू डू सम एक्टिविटीज ऑन द फ्लोर। तो इस तरह से एक टीचर जो है वो अपनी एक्टिविटीज में अपने आप को बच्चों को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या डिवाइड कर सकती है उन्हें। वेरी गुड। और जैसे लर्निंग एरियाज में जो कॉर्नर्स होते हैं, उसमें प्ले से रिलेटेड हम किस किस एरिया को कैटर कर सकते हैं, कि जैसे आपने कहा कि आर्ट एंड क्राफ्ट में तो लर्निंग है ही, लेकिन प्ले को हम किस तरह इंक्लूड करें आउटडोर के अलावा, अगर इंडोर हो हमारे पास लर्निंग एरियाज। बिल्कुल कर सकते हैं। कि देखिए, जैसे आप समझे कि अगर हमारे पास लैंग्वेज का आ गया है, ठीक है। अब आपने ना लैंग्वेज में आपके पास स्टोरी टेलिंग सेशन आया है। स्टोरी टेलिंग सेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मेक इट सो इंटरेस्टिंग। आपने खेल खेल में क्या चीज की, यू आर गोइंग टू मेक सम प्रॉप्स, you are going to make some big books, you are going to show some toys as well, जैसे बिफ चिप, और वो जो एक स्टोरी है। अब उसमें आपने पपेट्स आपके पास है जी, उन जी। पपेट्स को आपने बच्चों को शो किया है, हेलो हाउ आर यू, तो ये बच्चों ने एकदम ग्रैब करा उनका अटेंशन, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू आर, बल्कि मीनवाइल आप सिंगिंग भी करते जा रहे हैं। तो सिंगिंग
स्टोरी टेलिंग से लिटरेसी इनकी डेवलप हो रही है, दे आर लर्निंग द न्यू वर्ड्स एज वेल। तो इस खेल में, इस प्ले में एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर गोइंग टू टेल द स्टोरी बाय द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, बाय द हेल्प ऑफ सम जो आपके कटआउट्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें जो आप स्टिक्स पे लगा के, पॉपसिकल्स पे लगा के उसको बनाते हैं वो, और अपनी तमाम चीजें, या बिग बुक्स के थ्रू भी आप उन्हें जब स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, दे आर लर्निंग समथिंग, दे आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग। ठीक है, सबसे बड़ी चीज हमारी लर्निंग बैरियर जो होता है, जो बैरियर होता है, वो होता है कि हम फोकस नहीं करते। द चाइल्ड इज अनएबल टू फोकस। व्हाई? क्योंकि पहली चीज टीचर की तरफ से उसकी लैकिंग होती है। जब आप स्लिपी होंगे तो आप कैसे अपने बच्चों के अंदर इस हैबिट को डालेंगे कि वो फोकस करे? तो उस फोकस के लिए तो एक्टिविटी मस्ट बी सो लाइवली। द थिंग इज दैट कि हमारी अपने अंदर कितनी एबिलिटी है कि हम अपने बच्चे की अटेंशन को लें। ठीक है ना? जैसे लेट सपोज अगर आप ये बात करते हैं कि भाई एक स्टोरी भी अगर आप सुनाने जाएंगे तो आप कैसे सुना सकती हैं? चिड़िया की कहानी है, ना आपको चीखने की जरूरत है, ना आपको जोर से बोलने की जरूरत है। यू आर गोइंग टू शो, एक छोटी सी चिड़िया आप खरीद के ले आइए और आप उसे दिखाएं, अरे देखिए आज हम बड़ी प्यारी सी एक चिड़िया लेकर आए हैं। एक लाइन बच्चों को आपकी तरफ लेके आएगी। आई बेट अटेंशन सीकिंग होना चाहिए जी, टीचर्स को। अटेंशन। मैंने देखा है टीचर्स अगर जोर से बात करती हैं, दे नेवर लिसन, दे विल ऑलवेज लिसन व्हेन यू आर मेंटली स्टेबल। जब आप शाउट करेंगे तो बच्चा शाउटिंग सीखेगा। आप आराम से बैठ के उनको तहम्मुल से मुस्कुराते हुए कोई चीज सुनाएंगे तो दे विल बी ऑलवेज एबल टू हियर दिस। तो आपने बच्चों को प्रॉप सिखाया, हेलो एवरीवन, हु इज दिस? ओह, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस puppet? It's a biff. What's the color of this dog? It's a dog or a floppy? अगर फ्लॉपी की भी बात कर रहे हैं तो इस तरह से बच्चे खुश होके दे विल हेयर इट। तो कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो गई है। उसके बाद उनकी लर्निंग एबिलिटीज जो है, हेयरिंग एबिलिटीज, जो हेयरिंग स्किल्स हैं वो होंगी उनकी। दे आर एबल टू स्पीक, दे आर एबल टू राइट एज वेल। अगर जो वो अपनी एज अप्रोप्रिएट जाएंगे तो बच्चों ने फोकस किया, उनकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं हुई, तो उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बढ़ गया, है ना? तो ये स्किल्स उनकी डेवलप हो गई। अब आप बताइए मैथ्स में क्या करते हैं कि मैथ्स में हम फिगर आउट कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज, हम जब अर्ली ईयर्स में आते हैं तो बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो फिगर आउट कैसे करते हैं, वो घर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। मैथ्स तो हमारी लाइफ के अंदर शामिल है। मैथ्स अल्लाह ताला ने कैसी चीज हमारी अंदर की है। 5 टाइम्स हमारे पास सबसे पहले प्रेयर्स होती है। हम मॉर्निंग में उठते हैं और बाहर निकलते हैं, रात को हम सोते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज वेल। हमें कितना चलना है, कितना हमें जो है जहाँ पे जाके स्टॉप करना है, तो मेजरमेंट है हर चीज की। द आई थिंक मेजरमेंट मैथ्स हर सब्जेक्ट में है, हर सब्जेक्ट में इंक्लूड है मैथ्स। इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। अभी आप कुछ इवन बताइए कि इवन आप। जब हम साइंस पढ़ाते हैं बॉडी पार्ट्स, तो उसमें भी हम काउंटिंग को जरूर इंक्लूड करते हैं। वी हैव 2 आईज एंड 1 नोज। या एग्जैक्टली। तो देखिए ना, मैथ्स के अंदर अगर आपकी न्यूमरिक या प्री प्री मैथ्स जो स्किल्स होती हैं वो आगे जाके आपकी न्यूमरिक और आपकी सारी स्किल्स को डेवलप कर रही होती है। साइंस के अंदर ऑब्जर्विंग आ जाती है, तमाम एक्सपीरियंस आप उसमें इनकलकेट करते हैं, एसएसटी में एक्सप्लोरिंग हो जाती है आपकी। तो आप जितनी भी स्किल्स डेवलप करते हैं, आप छोटे बच्चों के साथ ही तो काम करके स्टार्ट करते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम वेरी अर्ली ईयर्स। ठीक है जी। तो आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो आप बच्चों के साथ कहते हैं भाई, बच्चा सीट पे बैठ रहा है तो फिगर आउट ही तो कर रहा है कि अगर मैं से बैठा फिक्स सही से बैठा हूं तो गूंगा, अदरवाइज आई विल फॉल। ये कहा मुझे कितना बैठना है, दूसरे को कितनी जगह देनी है, हाउ मच टाइम आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हर चीज में एवरीवेयर यू मे सी द मैथ्स, द फिगरिंग आउट, एवरीवन इज फिगरिंग आउट। तो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो भी मैथ्स है। आप बच्चों को कितना पढ़ाते हैं, आप मुझे कितना चीज यहाँ पढ़ानी है, यहाँ पे आके मुझे कितनी दफा इसको रेपिटेशन करनी है। तो छोटे बच्चे को साथ जब टीचर बैठी हुई होती है और मैथ्स पढ़ाती है, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अ नंबर, it's all about the giving them the concept through real objects। एक कॉन्क्रीट, मेरे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि 1 till 10 हमारे बच्चे को आती है। तो भाई 1 till 10 है क्या? बेसिकली इट्स अ सिंबल, और है ना? इससे हमें मुझे ये हुआ कि मतलब जैसे हम लर्निंग कॉर्नर से और लर्निंग एरियाज की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर एरिया में सारे सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड हैं और एक सारे स्किल्स भी, यानी हर एरिया में मैथ्स भी है, साइंस भी है, सोशल स्टडीज भी है।
तो बस ये टीचर का काम है कि वो प्लानिंग किस तरह करे एक्टिविटीज को और क्या बिल्कुल, स्ट्रेटेजीज बिल्कुल। यूज करें। तो ये सब टीचर्स, लेकिन हम अगर जब हम मदर्स की बात करते हैं तो हुँ, मिस मोना, हम घर में किस तरह से, आपने जैसे पहले भी लो कॉस्ट की बात की कि घर में घर की चीजों से, तो हुँ, मदर्स के लिए क्या ऐसी आपके पास आप शेयर करोगे कि वो हुँ। घर में ऐसी क्या चीजें एक्टिविटी प्लान करें या स्ट्रेटेजीज ऐसे यूज करें कि लो कॉस्ट बजट में या घर की चीजों में अपने बच्चों को इन सारे इंटीग्रेटेड विद सब्जेक्ट से रिलेटेड और मैथ साइंस या इन सब चीजों के हुँ। कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर सकें। अच्छा, ऐसा है कि कुछ पेरेंट्स और मदर्स हमसे दे आर वेरी ईगर टू लर्न। अगर आप ईगर है किसी चीज़ के लिए तो यू कैन लर्न, ठीक है? व्हिच आई हैव जस्ट टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बिफोर कि आप जो है अपने यू मे विजिट मेनी वेबसाइट्स, बल्कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने अतराफ में, अपनी सराउंडिंग में लोगों से या मदर से बात करते हैं कि भई माशाल्लाह आपका जो बच्चा है ही इज़ कैपेबल ऑफ काउंटिंग। हाउ मच? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ठीक है ना? तो आपने फ़ौरन अपने माइंड में लाए कि इस मदर ने ना ये चीज़ की थी, तो व्हाई नॉट आई? मैं भी तो इसको ट्राई कर सकती हूँ। तो हम जब छोटे बच्चों के साथ बैठी होती हैं, तो माएँ अपने बच्चों को किचन में लेके जाएँ, उनसे ये सारी चीज़ें रियल लाइफ़ स्किल्स जो हैं, उन्हें सिखाएँ खेल-खेल में, कि हाँ, आप उनकी हेल्प करें सबसे पहले। टेबल उनके साथ अरेंज करिए, उनके साथ आप उनके बच्चों को कहिए कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ा-सा तो बच्चों के पेरेंट्स को सीखने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे। क्योंकि कैसे ट्रू। अगर वो स्कूल में आती हैं, दे नीड टू आस्क इट, दे मे आस्क इट फ्रॉम द टीचर्स, दे मे सी द एक्टिविटीज़ एज़ वेल, जो उनको उनके अब तो हर स्कूल के फेसबुक पेजेज़ हैं, दे मे विज़िट द पेजेज़ एज़ वेल के, और फिर इसके अलावा कितने पैरेंटल गाइडेंस की वेबसाइट्स हैं, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, तो सब कुछ अवेलेबल है। कौन-सी ऐसी सही। चीज़ है जो कि आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी या लोग नहीं मिलेंगे? सीखने वाला इंसान होना चाहिए। मदर्स सही को बात। भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को खेल-खेल में क्या चीज़ सिखा रही हूँ। अगर आप घर में बच्चों के पेरेंट्स बैठे होते हैं और वो बॉल खेल रहे होते हैं, तो आपको पता है वो क्या चीज़ सीख रहे होते हैं? या लूडो खेलते हैं। इफ दे प्ले लूडो, इफ दे प्ले कलरिंग, रीड अलाउड, बॉल से खेलना है या आउट ऑफ बॉक्स से कुछ बनाया है उन्होंने अपने लिए, बुक्स रखने का बना दिया या बसेस बना दी हैं, आउट ऑफ ट्रैश एनीथिंग कैन बी मेड, या उन्होंने कोई भी चीज़ किचन में पेरेंट्स ने लिड्स आपने देखी हैं जो जो छोटे-छोटे हमारे घरों में जो ये सारे बर्तन होते हैं घर के, अगर आप बच्चों को दे दें और वो उसको सही उसमें लगा दें पॉट में, कुकिंग पॉट में, तो इसका मतलब है बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन आ गई है। उसे पता है कि व्हिच विल बी फिटिंग, व्हिच इज़ गोइंग टू फिट इन व्हिच पॉट। ये आप जानते हैं हम्म। ना कि आपको पता है कि ये असेंबली। सारी चीज़ें रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस हो रही है। इसी के साथ-साथ आप बच्चों के पेरेंट्स एज़ अ मदर जो है, वो अपने बच्चों को काउंटिंग सिखाती है, कलरिंग करना सिखाती हैं, साथ बैठती हैं तो पढ़ना सिखाती हैं, हर चीज़ दे कैन डू एनीथिंग इफ दे वांट। तो वो जब हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बस आके कहते हैं, इन्हें तो काउंटिंग आती है। जबकि उन्हें ये भी बताना चाहिए कि घरों में आप उन्हें काउंट करना सिखाइए, सो दे मे काउंट द ऑब्जेक्ट्स, है ना? या फिर उनको ये सारी चीज़ें आएँ, रियल लाइफ स्किल्स, जैसे आपने स्किल्स की बात की है। तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि एक पेरेंट अपने घर में नहीं अपने पेरेंट्स अपने उनको सिखा सकते हैं? दे मे टीच ईच एंड एवरीथिंग इफ दे वांट। रियल लाइफ स्किल्स यही है, लाइफ में हम्म। टैकल करना, और वो सब कुछ दे आर लर्निंग थ्रू प्ले। अच्छा, बाहर लेके भी एग्जैक्टली। जाते हैं, मैं आपको एक बहुत-बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। बच्चों को ले जाना बाहर, इट्स नॉट ओनली द पार्ट ऑफ प्ले। जब बच्चे बाहर जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ज़ू जाते हैं, लेट्स सपोज़ वो गार्डन किसी पार्क में जाते हैं, तो दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर सराउंडिंग। बर्ड्स चर्पिंग, पूरा एक एनवायरनमेंट उनके सामने है, एक नेचुरल, जिसमें उनकी सेंसरी डेवलपमेंट होगी। अगर वो पार्क में इफ दे पुट ऑफ देयर शूज़ एंड दे स्टार्ट रनिंग, दे विल बी डेवलपिंग देयर सेंसरी डेवलपमेंट। कैसे हो रही है? उनको फ़ील हो रहा है अपने फीट से। इसी तरह वो चीज़ों को टच कर रहे हैं, तो टेक्सचर उनके हाथ में आ रहा है। दे आर प्लेइंग विद विद अदर चिल्ड्रन, सो दे आर लर्निंग टू बी सोशलाइज्ड। They are learning to respect others. They are learning to to take care of the environment as well. इसके अंदर एक चीज के अंदर हजारों स्किल्स हैं, और है अगर ना? हम कुछ बाइंग या सेलिंग करने जा, मतलब बाइंग कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो उनको बाइंग और सेलिंग भी आती है, कैलकुलेशन आती है।
हाउ टू यूज मनी, हाउ टू स्पेंड, हाउ टू सेव, और ये सब चीजें भी तो एग्जैक्टली, ठीक ये है। भी आती है। इसके लिए आप इस अपने बच्चों को लेके जाएं, इंटेलिजेंस की बात हो रही है, डेवलपमेंट की, तो आप ये देखिए कि हमारे पास कौन कौन सी इंटेलिजेंस है। हमारे पास इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, हमारे पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक्स आ जाता है, स्पेशल आ जाता है, आपके पास ये सारी इंटेलिजेंस आती है। आपने भी बात की बड़ी खूबसूरत कि हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं, हाँ, या तो मैंने घर पे छोड़ देते हैं, वेदर इफ दे आर या उनको हम अगर लेके जाते हैं तो दे मे लर्न अ लॉट। ask them to take something from of their own favorite, यानी कि कोई भी चीज़ उठा लें उनके, and they may put it in the basket as well, वो जो ट्रॉली लेके जाते हैं आप अंदर, give them such confidence, they may choose it, they may choose something of their own choice। फिर वो सारी चीजें बच्चे रखें, और रखने के बाद जब काउंटर पे आते हैं तो उनको चांस दीजिए, सो दे कैन इवन पुट द थिंग्स ऑन द काउंटर, एंड देन दे कैन इवन have some sort of experience कि किस तरह खरीदी जाती है चीजें। तो ये बच्चे जो बड़े होते जाते हैं, खासतौर पे 7-8 के बच्चे, तो वो ज्यादा इन चीजों में डीलिंग और मैथमेटिकल माइंड डेवलप हो रहा होता है उनका, बिल्कुल इसी इसके तरह लिए की चीज। इसके लिए मुझे मतलब एक बात समझ में आती है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हो और कितना क्वालिटी टाइम आप उसको देते हो। मतलब अगर इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए या उनको ये सब लर्निंग एनवायरनमेंट देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ 1-to-1 टाइम स्पेंड करो, और वो भी क्वालिटी टाइम, कि आपने वाकई बिल्कुल। में खेल-खेल में उनको वो लर्निंग दे दी कि बच्चे को लग रहा है कि बस मैं तो खेल रहा हूँ, लेकिन उसने हम्म, बहुत कुछ चीज़ें सीख ली। तो इसके लिए बिल्कुल वाकई सही। में मदर्स के पास और इतना टाइम होना चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें, ना कि मोबाइल ठीक है दे दें। ना। अब तो टेक्नोलॉजी खैर तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मतलब ना चाहते हुए भी हमें देना ही पड़ता है। वो तो देखिए, एक बात ये है कि आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इससे निकली है। आप मुझे बताइए कि वो जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इट इज फॉर 1 आवर और 2 आवर्स और 3 आवर्स, बट द रेस्ट ऑफ हुँ, द टाइम इज वर्थ मदर्स। ठीक है, ठीक है, जी। आप समझते हैं कि आईटी स्किल्स अगर मदर्स में डेवलप हो रही है, सो दिस इज सच अ गुड साइन। ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताएं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि अब 2 आवर्स की इस क्लास में, हमारे पास 2 आवर्स की इस क्लास के बाद हम कौन सी ऐसी चीजें जो इसी लर्निंग को अपनी इन इन बच्चों को एक्सपेंड करें, इन आइडियाज को हम कौन सी ऐसी चीजें जो मैक्सिमम लर्निंग बना दें इस 2 आवर्स की क्लास के बाद, मैक्सिमाइज कैसे करें। तो वही चीज आ गई है कि रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें। अच्छा, मुझे एक नजर आ रहा है साया, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ कि जो रीडिंग हैबिट्स है उसे कैसे डेवलप किया जाए। तो सबसे पहली चीज जो है वो लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम मॉम्स एज वेल। इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, ओके, हाउ कैन रीडिंग हैबिट्स बी promoted एट दिस एज। सो हेलो जैनब। अच्छा, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रीडिंग हैबिट्स है, इफ इट इज इन यू, इफ इट इज इनकलकेटेड इन यू, इफ इट इज इनकलकेटेड इन टीचर्स पर्सनैलिटी एज वेल, और मदर दोनों में, तो हमारे पास तो वैसे स्कूल्स में डियर टाइम भी होता है, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, राइट। You are giving them the opportunity to develop their reading habits. But what about the mothers? वो रीडिंग हैबिट आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द होम। आप वहां पर जी। अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी भी जगह को अगर इम्प्रेसिव बनाए, छोटा सा, लो बजट में, वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी कि जो एक बॉक्स है, अगर कार्टन भी आपके पास है, आप उसे थ्रो करने के बजाय आप उसको कवर कीजिए विद रैपिंग पेपर, एंड देन कीप द बुक्स इन देम, ठीक है, इन द बॉक्स। और यू कैन मेक अ शेल्फ आउट ऑफ DIY शेल्फ, वो जो भी है, अब आप उसमें छोटी छोटी बुक्स ला के रख दीजिए, इकोनॉमिकल हो, रीयूज करने वाली बुक्स हो, स्टोरी बुक, एंड देन यू आर गोइंग टू सिट विद देम। अभी आपने एक बात की कि क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ होना चाहिए, तो हु इज गोइंग टू रीड द बुक्स, who is going to मदर्स। promote such जी। literacy habits in your child? Your neighbor or the teacher or anyone else? No, this is you actually who is responsible for promoting such learning, such reading habits. आपने बच्चों से बात की, यू आर गोइंग टू शो द बुक्स। अगर वो छोटा सा बच्चा है, 2.5 है, इवन 1.5 का है, तो उसको आप बुक्स दिखाएंगे,
आप बोर्ड बुक्स दिखाइए, शो देम द बुक्स, टॉक अबाउट द पिक्चर्स विच दे मे सी, एंड टॉक अबाउट द थिंग्स एज वेल। आप उसको इनकरेज करिए बोलने के लिए, ठीक है। एंड ही विल बी इवेंचुअली ही विल बी हैबिचुअल ऑफ द बोर्ड बुक्स। आप नहीं भी होंगी तो ही विल ऑलवेज पिक द बुक्स। मेक योर एनवायरमेंट इन सच अ वे। आपके पास अगर सारा दिन मोबाइल आपके हाथ में होगा, द चाइल्ड विल ऑलवेज लर्न टू यूज mobile using. If the book is in your hands, if the book is in your in-laws hands, if the newspapers are there, if the book reading material, the material is there related to the books as well, जिसमें न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास बहुत सारी चीजें, मैगजीन्स होते हैं, मंथली होते हैं। अब हम तो, मुझे आई रिमेम्बर्ड कि नौनिहाल हम इतने शौक से पढ़ते थे। बाप रे। हम क्यों पढ़ते थे? पढ़ती थी आप में। तो वो जो बिल्कुल। नौनिहाल होता था, या वो यंग वर्ल्ड होता था, जब थोड़े बड़े हुए थे तो यंग वर्ल्ड भी था। तो वी वर सो कीन टू लर्न अबाउट द थिंग्स, व्हाई? बिकॉज इट वाज डेवलप्ड बाय आवर पेरेंट्स, है ना। तो वो हमेशा हमें बिल्कुल। याद रहती है चीजें। तो वो लर्निंग जो बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स है, वो पेरेंट्स से ही स्टार्ट होती है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट सच एनवायरनमेंट। और वो मैंने एनवायरनमेंट की बात की कि पुअरली डिजाइंड एनवायरनमेंट जो है, इट विल ऑलवेज द सोर्स ऑफ डिसरप्शन, इट विल ऑलवेज द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने बच्चे को एनवायरनमेंट बनाया और बच्चा ना पढ़े। आई बेट यू, बच्चे के अंदर जैसी हैबिट्स आप इनकलकेट करेंगे, बच्चा वैसे ही करेगा, वैसे ही चीजें होंगी। आप प्रोवाइड कीजिए, बुक्स रखिए। आप लर्निंग के लिए जितना मटेरियल हो सके आप बिग बुक्स रख लीजिए। यू मे की बिग बुक्स, यू मे की बोर्ड बुक्स अकॉर्डिंग टू द एज लेवल बुक्स। आपने पिक्चर बुक्स रख ली हैं, आपने बहुत सारी ऐसे इंसाइक्लोपीडियाज हैं, हो सकते हैं आपके पास, फ्लैश कार्ड्स हैं। आप उसमें से मैगजीन्स में से पिक्चर्स को कट एंड पेस्ट करके एक छोटी सी बुकलेट बना दीजिए। सो दीज आर द एरिया आइडियाज एक्चुअली यू आर वर्किंग ऑन, and then you are promoting such habit in them, you are inculcating these habits in them। अब बच्चे की तरफ से आ गया, अब बच्चे की माँ ने, मदर ने जाके पेरेंट्स ने बताया कि हमारे बच्चे को रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, तो आप हमारे साथ प्लीज ये कोऑपरेट कीजिए कि यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो इन्वायरमेंट में टीचर के भी है, भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के लिए लिटरेसी एरिया या लर्निंग एरिया, ये रीडिंग कॉर्नर जो है, इतना अच्छा बना के रखे। नॉट लाइक दैट कि वो एक बिल्कुल डेकोरेट कर दे, बट द मेन टारगेट इज दैट कि वहां पे कैसी बुक्स रखी गई हैं। थिंग्स आर फ्रूटफुल। और ये भी इम्पॉर्टेंट है मिस मोना कि हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको चेंजेस करें, ताकि बच्चा बोर भी ना हो जाए एक ही एक चीज को कंटिन्यूअसली देख देख के। तो उनको चेंज करना ही तो जरूरी है। अगर मैं और आप जो हैं, इफ वी थिंक अबाउट आवर ओन सेल्फ, वी नीड चेंज। चेंजेस जब रियली। हमारे पास एक बुक्स पढ़ ली हमने, तो वो बुक्स रखी रहेंगी, तो अब क्या होगा? द बुक्स विल रिमेन इन द शेल्फ। लेकिन हमें वी नीड टू चेंज द बुक्स एज वेल। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की आ सकती हैं। अब मैं और आप जिस प्रोफेशन में हैं, वी कैन हैव अ लॉट ऑफ बुक्स टू रीड, है ना। हमें डिफरेंट टॉपिक्स चाहिए। समटाइम्स वी विल बी नीडिंग इन दैट पोजीशन, वी विल बी इन दैट पोजीशन कि हमें ट्रेनिंग से रिलेटेड चाहिए टीचर्स की। कभी हम बच्चों की साइकोलॉजी पे पढ़े होंगे, तो कभी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके पढ़े होंगे। तो उस उम्र का बच्चा, उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए, कि कोई बच्चा आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट लेता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बुक्स हैं। कुछ बच्चे किसी को मैथ्स से रिलेटेड स्टोरीज चीजों को है रखते हैं, जी बिल्कुल, रियली। काउंटिंग की है। कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजों को पसंद करते हैं। अगर आप हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी को पेरेंट्स पढ़ लें, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट एज वेल, आप अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को जान जाएंगे। You will come to know that what is the psychology behind this, that if the child is picking up the guitar and he's singing song, why? Because उसकी पर्सनैलिटी कह रही है कि उसे सिंगिंग करनी है। बहुत सारे बच्चे बोलने में बहुत शाय फील करते हैं, लेकिन वो लिखते बहुत अच्छा है। तो ये रियली। वाली चीज जो उनके अंदर आएगी, वो होगी लिटरेसी, यानी कि इंटेलिजेंस को उनके वो कर रही होगी, वो एक्सप्लोर कर रहे होंगे बाय राइटिंग। सम आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, तो वो स्पीकर्स बन जाते हैं। सही है। कुछ लोग शायर होते हैं बहुत अच्छे, तो वो उनके अंदर लिटरेसी डेवलपमेंट कहाँ से हो रही होती है? बचपन से हो रही होती है। बहुत से बच्चे कलर कर रहे होते हैं, तो पेंटर होते हैं, है ना। तो हमने ऐसी बहुत सी चीजें अपने बच्चों में, कुछ में काइनेस्थेटिक होती है, तो एथलीट्स होते हैं।
उनकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि वो माशाल्लाह एथलीट बनते हैं आगे जाके लाइफ में, है ना? और इस तरह से बहुत सारी चीजें, स्पोर्ट्स की उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो यू मे सी कि ये जो हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हर पेरेंट उसको, जितने भी लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं, प्लीज उसको वो जरूर प्रमोट करें, खुद पढ़ें, एक दफा पढ़ लें अपने बच्चों और की इससे ये भी साइकोलॉजी। होता है कि जैसे अगर पेरेंट्स को और टीचर्स को ये बात पता चल जाए कि ये जो है उसकी इंटेलिजेंस क्या है, और तो जी ठीक है, वो उसे इस तरह फॉलो, स्पेशली पेरेंट्स। लेकिन बाज दफा किसी के साथ नाइंसाफी भी हो जाती है, उसका इंटरेस्ट कहीं और होता है, लेकिन हम एकेडमिक प्रोग्रेस को लेके उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं बाज दफा कि वो उसको खुद भी नहीं पता होता कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, और वो उसका करियर या जो भी होता है वो फ्यूचर में कोई मतलब और चूज करने के बावजूद मतलब वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बचपन से ही हम इस चीज को जान लें कि किसी बच्चे का स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या है और उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो वाकई में टीचर और पेरेंट दोनों का मतलब इस लिटरेट होना, एजुकेट होना इन सब चीजों के बारे में बहुत जरूरी है। राजदा, आपने एक बात और भी नोट की होगी कि हमारे बचपन में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनते थे, है ना? रियली। जब आपसे कोई पूछता था तो हम ये कहते थे कि जो गर्ल्स हैं वो कहते वो थे आई डॉक्टर वांटेड टू बी अ डॉक्टर। और जो बॉयज बॉयज होते इंजीनियर। थे या तो वो पायलट होती थी उनकी चॉइस, या अब आपके जो है इंजीनियर होते थे। तो मेरे फादर भी, ही वांटेड टू सी मी डॉक्टर एज वेल, बट आई हैड नो इंटरेस्ट इन मेडिकल। अब क्या हुआ, इवेंचुअली मेरे अच्छे नंबर नहीं आए एफएससी में, ठीक है, उसके बाद बट आफ्टर दैट आई गॉट फोर्थ पोजीशन इन मास्टर्स इन लिटरेचर। तो वो क्या हुआ कि वो मेरा माइंड कुछ और था, फिक्सिडिटी को पसंद नहीं करता था ना, ठीक है, फ्री माइंड था। तो अगर हम इस हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी से अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करेंगे, तो दैट वुड बी जस्टिस फॉर देम, that would be a रियली best, the best option for us as well। हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि हम अपने बच्चे को खेल खेल के अंदर उसकी राइट वे पे लेके जा रहे हैं, राइट पाथ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे अभी शायद मुझे एक चीज याद आती है कि अब हमारे पास देखिए प्रोफेशंस बहुत है। नाउ आई वंडर कि कितनी चीजें पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड कर गए, पेरेंट्स भी, और बच्चों को बहुत कुछ पता है। हमारे पास देखिए ना कितनी चीजें, कंटेंट राइटिंग कितनी बड़ी चीज आई है। पहले तो शायर होते थे या ऑथर हो जाते थे, अब कंटेंट राइटर, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, कितना कुछ है। तो मतलब बहुत सारी एक्सप्रेशंस, चीज है। फ्रीडम, जी बिल्कुल, उसकी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के कई रास्ते हैं, आपकी एक्सप्रेस करने के कई वेज हैं, मतलब, और आपके पास हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी फिर से दोबारा से वैसी ही घूम फिर के आ गई है। तो पेरेंट्स को मैं रेकमेंड करूंगी कि दैट दे मस्ट गो थ्रू दीज थ्योरीज एज वेल। 100 बिल्कुल। ऑफ प्लेटफॉर्म्स अब अवेलेबल हैं, मतलब बच्चों के लिए प्रोफेशंस चूज करने के लिए, करियर। और अब तो माशाल्लाह वो लोग खुद ही इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती, कि मतलब वो खुद ही, उनको पता होता है कि हमारा कहाँ पे इंटरेस्ट है। तो और मगर ये अच्छी बात है कि ये स्कूल इसमें वाकई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि जो रियल हम्म टीचर्स होते हैं और जो उनको गाइड करने वाले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हम्म होते हैं, जो बच्चों को गाइड करे। इसमें स्कूल का रियली बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू मिस मोना जलीस, वी हैव अ वेरी वंडरफुल सेशन विथ यू। आपने अपना टाइम दिया सो मच। हमें, और मेरे ख्याल से जिस तरह के कमेंट्स यहाँ पे हैं, आई थिंक लोगों हम्म ने बहुत ही इंजॉय किया आपका सेशन, और काफी कोई इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो था। तो जरूर बताइए। बिल्कुल अ, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे आई थिंक सभी आपकी तारीफ कर रहे हैं बहुत ज्यादा। क्वेश्चंस, जज़ाकल्लाह। एक क्वेश्चन था मैं यहाँ पे कि अगर कैन यू सी दिस, हम्म ये बात हमने फिनेंशियल। beginning में हम्म कही थी कि हम्म पेरेंट्स को वर्कशॉप्स देने चाहिए। रियली मेरे ख्याल हम्म से ओरिएंटेशंस में, और अगर यही सारी बातें हम कर दें तो बहुत ज्यादा अच्छा हो। व्हाट यू से अच्छा अबाउट दिस? अच्छा, जैसे इन्होंने वर्कशॉप्स की बात की है, तो देखिए, हम जब टीचर्स अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, इट्स इट्स सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी, इट्स अ ट्रायंगल, जिसमें बच्चे, चाइल्ड, टीचर एंड द पेरेंट्स, दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। बट बात ये हो रही है कि स्कूल में आने से पहले पेरेंट को कैसे होना चाहिए,
दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, दे मस्ट बी, देखो तो फिर एक बात वो आती है कि हमारा अभी है ना कम्युनिटी सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एक सिंपल सोशली हमारे यहाँ कैसे काम है, एक पेरेंट है, उनका छोटा सा बेबी है, वो घर में थोड़ा सा पढ़ा लिया उन्होंने, एंड देन दे आर रेडी टू गो और सेंड टू स्कूल, ठीक है। अब आपने जैसे ईपीएल की बात की है, तो हमारे पास हर स्कूल में वी मस्ट हैव सच फैसिलिटी टू फैसिलिटेट पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप ओपन हाउस करते हैं, जब आपके पास पेरेंट्स आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, व्हाट इज दैट, कि आप बच्चों के पेरेंट्स के साथ पेरेंटल वर्कशॉप्स लीजिए। टेल देम दैट व्हाट इज द पहली वर्कशॉप लीजिए साइकोलॉजी पे ले बच्चों के, कि कोई कहता है कि मेरे बच्चे बहुत रोते हैं, दे आर वेरी क्राइंग, दे आर वेरी एनोइंग, तो आप उन्हें बताएं। अब आपके पास एक पूरी चेन बन जाएगी, एवरीथिंग विल बी इंटरलिंक्ड। आपके पास ईसीजी ट्रेन टीचर है, the head is there to help them, and then you are going to have some workshops along with your parents, along with your teachers, ठीक है। उसमें आप सारे पेरेंट्स को बुलाइए, प्री नर्सरी के, नर्सरी के, केजी के स्टूडेंट्स, 1 2 अर्ली ईयर्स जितना भी आता है, आप उनके पेरेंट्स से बात कीजिए और एक रिपोर्ट बनाएं, और उनसे बात करने के बाद उस रिपोर्ट पे काम कीजिए कि देखिए दिस वाज द फर्स्ट मंथ, वी आर गोइंग टू मेक सम एनेक्डोटल नोट्स, आपका बच्चा था, आपने इस तरह से करना है। पहले उनकी हैबिट्स पे बात कीजिए, उनके स्लीपिंग डिसऑर्डर अगर कोई है, या उनकी कोई उनके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी जरूर बात कीजिए इंडिविजुअली। जब हमारे पास बच्चे आते हैं, जब मैंने इतने साल पढ़ाया है, तो मैं हमेशा ये गौर करती हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स के बैकग्राउंड्स थोड़े थोड़े हमें पता होने चाहिए, बल्कि ज्यादा पता होने चाहिए। आप हाँ, किसी का बच्चा बहुत बुली करता है, किसी का बच्चा बहुत शाय होता है, कुछ बच्चे डिस्टर्ब्ड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, दे कैन नॉट इवन प्ले द पार्ट इन द प्ले एज वेल, दे आर शाय इनफ, दे नेवर टेक पार्ट। कुछ बच्चे आपको हमेशा ऑन लुकर्स दिखते हैं, वो सिर्फ खड़े होकर देख रहे होते हैं। आपने देखा है ऐसे बच्चे भी होंगे, है ना, वो true. स्टूडेंट्स। तो आखिर क्या वजह है कि दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले, दे आर नॉट गोइंग टू बी सोशलाइज्ड। तो बस ये सारी चीजें, ये सारा रिकॉर्ड हमें रखना है एज अ हेड टीचर, एज टीचर। फिर आप उन बच्चों पे काम करें, देन वर्क ऑन देयर पर्सनैलिटीज। तो इंशाल्लाह ताला यू विल सी कि आपकी कामयाबी उस बच्चे की भी कामयाबी बनती है, पेरेंट भी सीखते हैं। एंड इट इज द सदका जारिया। इफ यू आर अ टीचर, योर सोल मस्ट बी अ टीचर्स सोल, यू मस्ट हैव सम इमोशनली अटैचमेंट बहुत जरूरी है, रियली वो अटैचमेंट जबरदस्त। होती है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए हमें तो। बहुत अच्छी बात कही आपने मिस मोना, थैंक यू सो मच। हमारा एक्चुअली टाइम आउट हो चुका है, क्योंकि सब थैंक यू सो पेरेंट्स के मच। पास और लोगों के पास भी लिमिटेड टाइम होता है। थैंक यू एवरीवन टू जॉइन अस, एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर, हैव अ नाइस डे। ओके, Have a nice weekend, everyone. Thank you so much. Goodbye, everyone. गुड, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Okay, thank you all to join us. हमारा जो tomorrow we have a session with Rahmat Ibrahim with Miss Fatma Shakir is postponed to 6 January. So if you all want to join us in that session, so please note that tomorrow we are not having that session, and we will have on 6 January Wednesday. Okay, Allah Hafiz everyone.